making powers are reliable, for you are in alignment with the pig spirit's keen intelligence. Yes, सोच समझ के डिसीजन लीजिए. हमको we don't have to ignore anything. Facts are facts. It cannot be ignored. And red flags are red flags. Again, it cannot be ignored. Red flags are something you have to take concern. तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है जिया. ओके, यूनिवर्स बोल रहा है किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है. यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ और इग्नोर द रेड फ्लैग्स टू बी इन रिलेशनशिप विद एनीबडी. ये एनीबडी के बारे में बात हो रहा है. जिया नीड्स टू ओपन हर माइंड, टेक इट इजी, नोइंग जो उसके लिए बना है वो सही समय पे उसके सामने आ जाएगा. राइट? So she doesn't has to rush the process. She has to trust the universe, process of her life, the journey, and surrender. And yes, at the same time, कुछ red flags दिख रहा है, कुछ facts add up नहीं हो रहा है, तो she doesn't has to ignore that. एक open mindedness का जरूरत है. ठीक है ना? All right. अब हम यहाँ पे देखेंगे उसको. All right, I wanted to take this card, so I will take this card only. ये ओवरऑल पिक्चर है जो उसको फॉलो करना चाहिए. अब एनर्जीज हम चेक कर लेंगे कि कैसे आ रहा है. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the Jia fans. And for Jia, of course, about finding love in her life, about romantic relationship, what is that she should know. Finding the love. 6 of Wands is a victory. 7 of Wands say, देखो, very good. This is super awesome, guys. This is super awesome the way these cards have come. 7 of Wands यहाँ है, 6 of Wands यहाँ है. इसका क्या मतलब है? यहाँ पे डिफेंसिव होने से जगह she has to get into her own power. 6 of Wands क्या कार्ड याद है ना आपको? एक वॉरियर घोड़े पे जा रहा है and people are cheering for him. The guy has won. तो in order to win in love, okay, in order to win in love, she has to move from here to here. अभी she doesn't has to be this defensive. देख रहे हो ना? It is her life. It should be her choices. यहाँ पे देखो ये जो I think this is a dog spirit. Be loyal to what you like. Be loyal to yourself, importantly. तो अपने आप को वैल्यू करो. Stay loyal to yourself. Don't be defensive, because it is your life. What you like will be valid. तुमको अपना चीज लोग अटैक करते हैं या फिर उसके कारण तुमको जल्दबाजी में डिसीजन लेनी है. और you don't have to prove anything to anybody. Just be yourself. And जो चीज है वैसे तो उसको ध्यान देना ही है. Cannot be ignored. Don't be defensive about anything. It is your thing. Love life for Jia. What is that she needs to know? Okay. ये देखो 10 of sword है. 10 of sword. She is like 10 of sword से बाहर आने की जरूरत. What is that she needs to know? और ये है 3 of cups. ये देखो 10 of cups का कार्ड आता है. अभी क्या आ रहा है यहाँ पे? ये तो देखो दिस कार्ड is 3 of wands और just 6 of sword. 3 of wands है ये. 3 of wands.
यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है, शी हैज बीन रियली हर्ट बैडली. 10 ऑफ सोर्ड, she has been hurt badly when it comes to this love shove, romantic love, right? She needs to come out of this, जो भी past में हुए हैं ना. And Jia का, you know it, Jia and she, there is a lot of moon phases in her readings, we have seen that, है ना. तो यहाँ पे 10 of sword है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है. यानी कि जो भी देखो, 10 ऑफ सोर्ड इज़ नॉट अ ईजी एनर्जी, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एनर्जी. 10 ऑफ सोर्ड का मतलब होता है 1 2 3 नहीं, 10 के 10 सोर्ड आप अपने पीठ पे लेके बैठे हो. यानी कि बहुत ज़्यादा इमेंस पेन है वहाँ पे दुख है, वहाँ पे दर्द है, वहाँ पे बिट्रेयल है, वहाँ पे हर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन हमको इससे बाहर निकलना होगा. हम यहाँ पे ही रह के इसी सेट, अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो हम ये इसी जगह से डिसीजन मेकिंग करेंगे ना, तो हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा. यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ने 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड दिया है. इसका मतलब है कि इसका पेन इज नॉट बीइंग डिस्काउंटेड. इट इज़ नॉट दैट स्पिरिट गाइड्स डोंट नो, यूनिवर्स डोंट नो. उसके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो जानते हैं उसका पेन, उसका हर्ट जानते हैं. लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जब तक आप यहाँ पे ही रहेंगे ना, हम यहाँ से ही डिसीजन लेते रहेंगे, ट्रिगर होके डिसीजन लेंगे. तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ हमने अपने आप को क्या कर लिया, क्लोज कर लिया है इस हर्ट में. ओके, सो वी डोंट हैव टू टेक डिसीजन फ्रॉम हियर, वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर. नो मैटर व्हाट, वी विल हैव टू मूव फ्रॉम हियर. ठीक है. और हम जब एक नया सवेरा आने देना चाहिए. If we are staying here in this darkness, we are not allowing the new sunrise to come, the new ships to come. 3 of wands है ये. 3 of wands is about नए रास्ते बने हुए हैं. 3 of wands is about opportunities coming in. तो देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि हमने भी अपना सर को ऐसे नीचे झुका के एकदम अपने आप को बंद कर लिया है और इसमें दुख में ही है, तो हम बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए आ सकती हैं. 3 ऑफ वॉन्ड किस चीज़ का कार्ड होता है? योर शिप्स आर अराइविंग, राइट. तो इसको उल्टा कर रहे हैं हम, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे लिए आ सकती हैं, चाहे तो वो अभिषेक को ले लो या फिर अभिषेक के साथ ही मानो कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है. एक हैप्पी रिलेशनशिप हो सकता है. लेकिन क्योंकि हम यहाँ से ही ऑपरेट होते रहते हैं ना, तो हम अपने आप को ही हर अपॉर्चुनिटीज़ से रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए वंचित कर रहे हैं. समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? बिकॉज we have closed down ourselves because of the hurt. We continue to stay here and we don't realize, but we continue to stay here and operate from this hurt and pain. और जब हम इस hurt and pain को heal नहीं कर रहे हैं, जो कि healing का ही उनका relationship है पूरे साल according to my tarot, annual tarot जो उनका किया है, तो जब तक ये healing नहीं होगी, यहाँ पे कुछ भी होगा तो आप वापस उसमें जाके वहाँ से ऑपरेट करेंगे ना, ट्रिगर्ड पॉइंट से, तो वो चीज़ ठीक नहीं होगा दोनों के बीच में या किसी के भी बीच में. तो इस बिहेवियर से हो क्या रहा है, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, रास्ते खुल सकते हैं, चाहे तो वो पहले के रिलेशनशिप हो या नया का रिलेशनशिप हो. दिस इज हर लव लाइफ, दिस इज अबाउट हर, दिस इज नॉट अबाउट एनीबडी एल्स. बट बिकॉज शी हैज बीन लिंक्ड टू अभिषेक, तो कुछ कुछ मैं उसका भी बता रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन डूइंग देयर रीडिंग्स. बट एनीवेज दिस इज हर रीडिंग. तो यहाँ पे है, अपने आप को खोलो, तभी आपके दरवाजे खुलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगा. ऑलराइट, तो ये तो हो गया उसका ओपन माइंडेड. ओपन माइंडेड, डू यू सी दैट हाउ शी हैज क्लोज्ड हरसेल्फ. और ये कार्ड का मैसेज पढ़ा था ना मैंने, शी नीड्स टू बी ओपन माइंडेड. वो चीजें हैं, इसके दुख तकलीफ ने ना इसको बहुत बंद कर दिया है. और कोई चीज की हड़बड़ी नहीं है. शी हैज टाइम. द वेरी फैक्ट कि इसका टर्टल स्पिरिट आया है, लव लाइफ में इसके पास टाइम है. यू डोंट हैव टू वरी, फैंस डोंट हैव टू वरी. फैंस इवन इफ दे वरी, शी कैन टेक हर ओन टाइम. तो ये चीजें हो गई, ठीक है. नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे इफ शी ओपन्स हरसेल्फ अप.
शी इज नॉट इन द फ्रेम ऑफ रिसीविंग के मोड में नहीं है, पास्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देख रहे हो ना? ठीक है, कोई बात नहीं, स्लोली स्लोली होगा। यहाँ पे स्लोली टर्टल का मैसेज है। या व्हेन शी ओपन्स अप शी कैन वॉक ऑन दिस पाथ, इट इज देयर फॉर हर। अब ये एनर्जी चेंज होगी ना, तो ये भी चेंज होगा। ओके बहुत गॉसिपी एनर्जी भी उसके आसपास रहती है। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, गॉसिप गॉसिप गॉसिप, वो सारी चीज़ें भी उसे डिफेंसिव करती हैं, बांध देती हैं ना, वो चीज़ है। ऑल राइट, तो ये तो आप समझ गए हो ना, न्यू थिंग्स कैन हैपन फॉर हर। और ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का क्या मतलब होगा? गॉसिपी एनर्जी तो डेफिनेटली है विद दिस 3 ऑफ कप्स यहाँ पे, रिवर्स में है ऑफ कोर्स। अच्छा चलिए, अब हम दूसरा कार्ड निकाल के देखेंगे एंड सी इफ वी कैन गेट मोर क्लैरिटी अबाउट 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई जस्ट गॉट एन आइडिया कि वो वर्क फ्रंट के बाहर भी हो सकता है उसका रोमांटिक रिलेशनशिप। ओके, डजंट हैज टू बी फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल इज अबाउट वर्किंग इन अ टीम है, ये उल्टा है। सो दिस पर्सन कैन बी रोमांटिक इंटरेस्ट उसका उसके इंडस्ट्री के बाहर भी हो सकता है, कुछ स्पोर्ट्स में हो सकता है। दिस इज व्हाट आई गॉट, सो आई टोल्ड। बूम, देख रहे हो ना कि ये 10 ऑफ सोर्ड कैसे उसके लिए लो सेल्फ एस्टीम बना रहा है। ये गॉसिपी पीपल कैसे किसी को ब्रेक डाउन करते हैं, या इसीलिए शी इज नॉट ओपनिंग हर सेल्फ अप। वाई? बिकॉज शी डजंट ट्रस्ट थिंग्स, यू अंडरस्टैंड? तो कैसे हम रिसीविंग मोड में नहीं है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है पर रिसीविंग मोड में हम नहीं है ना। कोई उसको यहाँ से देख भी रहा है, quite possibly somebody is watching her, you know, because this person clearly is watching her. मुझे लगता है कि कोई उसको देखता है, उसका दुख दर्द देखता है, but she is not watching. This person is watching, और ये clearly एक बंदे का गेटअप लग रहा है, ये बंदी का गेटअप है। तो मुझे लगता है कि कोई इंसान, अब ये कोई भी इंसान हो सकता है, ये अभिषेक भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, you never know. This is about her. मुझे लगता है कि कोई तो उसे उसके दुख है तकलीफ में देखता है उसको, बट उसको हेल्प नहीं कर पा रहा है। यू अंडरस्टैंड? उसको नए रास्ते पे वॉक करने के लिए हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को बांध लिया है बिकॉज ऑफ दिस लो सेल्फ एस्टीम। शी इज टू स्केयर्ड टू ट्रस्ट एनीबॉडी एंड ऑल दैट। ठीक है ना? ओके, या उसको अपने लाइफ में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। शी कैन हैव हर ओन जर्नी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज लेट नहीं हो रहा है, नथिंग इज लेट, एवरीथिंग इज इन डिवाइन टाइमिंग। All right, guidance coming for Jia Shankar for her love life. Can she have some guidance, dear angels? Thank you. Thank you so very much. In short, if she opens herself up, she can walk on this path. Great stuffs are waiting for her. लेकिन क्योंकि वो अपना सर झुका के अपने आप को बांध दिया है, क्यों बांध दिया है? लो सेल्फ एस्टीम, किसी ने उसके सेल्फ एस्टीम को धक्का दिया है, उसका अपने पे कॉन्फिडेंस कम हुआ है, वर्दीनेस इश्यूज हुआ है, एंड दैट इज व्हाई शी इज कीपिंग टू हर सेल्फ, क्योंकि वो एक तरह से अपने आप को स्टक फाइंड कर रही है, फील कर रही है। तो वो चीजें हैं। She can get the treasure chest. 3 of Wands, opportunities, people, eligible bachelors, especially this person is seeing her also, but she is not seeing him. But things can happen for her, जो कि मैं बार बार बोल भी रही हूँ कि opportunities are there, but she is not in the receiving mode. उसने अपने आप को क्लोज करके रखा हुआ है, ठीक है ना? And why has she blessed change? Why has she closed herself? Her subconscious is protecting her. क्यों? From this gossipy people जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया होगा, जिसके कारण लो सेल्फ एस्टीम हुआ है। हर सब कॉन्शियस इज प्रोटेक्टिंग हर। तो आप कितना भी इसको बोल दीजिए कि यहाँ कर लेना चाहिए, वो नहीं होता। वो कॉन्शियसली समझ में आता है हमको, बट सब कॉन्शियसली सम अदर थिंग, अदर सॉफ्टवेयर इज रनिंग, एंड दैट नीड्स टू बी हील्ड, एंड दैट फॉर दैट यू नीड अ थेरेपिस्ट। ऑल राइट, सो आई थिंक वी आर डन, ठीक है ना?
हो गया ये गाइडेंस. सो दैट इज व्हाट इट इज. Yep, that's what it is. Bye.